Hello everyone. In the previous video, we have started our first life process, that is respiration. If you recall the definition and the process of respiration, then it was a process of releasing energy from the food that we eat. इसका मतलब क्या होता है कि हम जो फूड हम जो इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट जो हम जो फूड करते हैं, वो फूड हम जो ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, उसके साथ मिलके ये बनाता है एनर्जी. मीन्स फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन जो हम रेस्पायर करते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल, ये दोनों मिलके हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी टू डू द वर्क. ठीक है. अगर आपको केमिस्ट्री की अगर क्लास याद है, तो जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. मीन्स इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. That is, the addition of oxygen in the food is referred as the oxidation. ठीक है. तो it is called oxidation of food means oxygen is added in the food which gives us energy to perform any kind of work. Is that clear? Then we have also seen that respiration occurs at two levels: body level and cellular level. And we have completed the body level respiration. In short, I will take a quick revision of that. What happens in body level respiration? Through nostrils, air enters inside the body. That is, we called as inhalation. Okay, because of the presence of hairs and mucus that present in our nose, जो वहाँ से air filter होती है, and filtered air will enter inside the body. ठीक है. Through nostril it enters in the windpipe, which is we called as trachea, and that trachea enters in the lungs and get divided into two, that is right lung और left lung में जाके ये right trachea और left trachea में जाके convert हो जाएगा. That trachea is divided into small that divided trachea is now is called as bronchi. Means right bronchi and left bronchi. और ये bronchi lungs में जाके small and small parts में divide होता है, which we called as bronchioles. और ये divide क्यों होता है? to reach to the whole part of the लंग. मैंने ये लंग के छोटे से छोटे तक कोने तक ये पहुंच सके, इसलिए ये छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल्स देयर इज अ थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स विच वी कॉल्ड एज alveoli. A balloon like structure is known as alveoli, and this is the region where the gases exchange takes place. Means ऑक्सीजन जो हमने एयर थ्रू लिया है, इनहेल किया है, वो बॉडी में एंटर होता है, और जो हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, CO2 जो रिलीज हुआ है, वो भी फ्रॉम द बॉडी सेल्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द alveoli, और थ्रू alveoli इट विल बी एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, जिसको हम सिंपल प्रोसेस में कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, I hope up to this it is clear to all of you. Now today we will start the two types of respiration. Here we have two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. What is mean by aerobic respiration? Aerobic respiration is simple, nothing but the respiration which occurs in presence of oxygen. और ये दोनों भी आते हैं आपके सेलुलर लेवल के रेस्पिरेशन में. तो क्या होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन? फर्स्ट वी स्टार्ट विथ आवर एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस एरोबिक रेस्पिरेशन
टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ये बुक डेफिनेशन होती है। अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, मीन्स व्हेन देयर विल बी अ एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट मीन्स बराबर अमाउंट में अगर वो प्रेजेंट है, तो हम नॉर्मली जो ब्रीथ करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो दिस एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल, और जिसको हम कहते हैं TCA साइकिल भी उसको कहा जाता है, और थर्ड होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसे हम कहते हैं ETC। ये 3 स्टेप्स मीन्स ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC, these are the 3 steps in which the aerobic respiration is completed. So first we see our first step, that is glycolysis. So listen carefully because this question is many times asked for the 3 or 2 marks, means write short note on glycolysis. तो listen carefully. सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस ये नाम से ही आपको समझ में आता है, इसमें 2 वर्ड्स है, ग्लाइको और लिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अब इसमें से आपको समझ में आएगा व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होता है, हम फूड लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट होता है बॉडी में, इंजेस्ट होके उसका डाइजेशन होता है, एंड डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो असिमिलेट होके हमारे पूरे सेल्स में जाके वो यूज़ होता है, जिससे हम एनर्जी मिलती है। दैट फूड, ठीक है, उस प्लस अपना ऑक्सीजन जो हम रेस्पायर करते हैं, ये मिलके बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे आपको फूड मिल गया, यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन थ्रू ऑक्सीजन भी मिल गया। अब ये फूड का होगा ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फूड, और that glucose now converted into, means after addition of the oxygen in the glucose, it will be converted into pyruvic acid, or simply it will be called as pyruvate. One and the same thing. You may call it as pyruvic acid or you may call it as a pyruvate. That glucose is then converted into pyruvic acid or pyruvate. Pyruvic acid का molecular formula है CH3COCOO निगेटिव, क्योंकि O है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड हाइड्रोजन आयन इसमें ये ब्रेक होता है, ठीक है। देन और ये सभी प्रोसेस एंड ये पूरी ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, मीन्स ईच सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब तक क्या लिखा हमने, फूड का ऑक्सीडेशन होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हुआ, ठीक है। यहाँ तक अपनी फर्स्ट स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस की, वो कंप्लीट होती है। अगर ये पायरुविक एसिड, इफ देयर इज अ एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन दिस पायरुविक एसिड इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जहाँ पे आपकी सेकंड स्टेप दैट इज क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मगर यहाँ पे पायरुविक एसिड जब तैयार होने के बाद अगर ऑक्सीजन अगर एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है,
या फिर जिसको हम बोलते हैं कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट टाइम वी रेस्पायर एनएरोबिकली, मीन्स इवन ह्यूमन बीइंग भी एनएरोबिकल रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो टाइम पे क्या होगा, दैट पायरुविक एसिड जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर बोथ aerobic as well as anaerobic respiration. Is that clear? I am again repeating, glycolysis ये एक ही ऐसी स्टेप है जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये दोनों के लिए भी कॉमन होती है। Is that clear? I am again repeating this whole process. Listen carefully. क्या होता है, जब भी हम फूड एंटर करते हैं, ठीक है, फूड जो इंजेस्ट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, अल्टीमेटली उसका ग्लूकोज बनता है। दैट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के थ्रू, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बाद कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। दैट पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये जाएगा आपकी सेकंड स्टेप, दैट इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अगर पायरुविक एसिड बनने के बाद अगर ऑक्सीजन कम लेवल में है तो वो जाएगा फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर्पस। इज दैट क्लियर? और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ये होती है आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब और हम जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब हम बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं। विगरस मीन्स बहुत हम टीडियस काम करते हैं, थकान देने वाला कुछ काम करते हैं, या दौड़ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो टाइम पे क्या होता है कि हम लोग आपने देखा होगा कि आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, आपकी सांसें फूल जाती है। तो दैट टाइम वी रेस्पायर एनएरोबिकली, मीन्स हमारे बॉडी में तब ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो जाती है, और वो टाइम पे यानी एक्सरसाइज करने के बाद हम बोलते कि नहीं अब यार हम थक गए। क्यों थक जाते हैं? बिकॉज ऑफ दैट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब हम ये तीनों भी स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तब आपको पता चलेगा कि जो एनर्जी हमको जो मिलती है जब हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती है, मगर एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन the energy released during anaerobic respiration is very less, ठीक है। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलिसिस, आई थिंक इट इज सबको ये क्लियर है। अगर और मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट नोट के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रेब्स साइकिल। तो ये दोनों भी जो साइकिल्स होती है, स्टेप्स होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अगर किसी को भी अगर आपको डाउट आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मेरा नंबर है, मेरा मैसेज भी कर सकते हैं, या सर से आप मेरा नंबर लेके मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? और इफ़ यू आर एनी डाउट, आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर यू ओनली, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो यू कैन कॉल मी। इज़ दैट क्लियर? ओके, बाय बाय।